انتونیو، کیا تم جانتے ہو کہ بغداد کے سفیر رادول کو کئی دنوں سے اس کے سفارت خانے میں انتظار کروایا جا رہا ہے؟ کئی روز ہو گئے ہیں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اب جا کر محل میں طلب کیا گیا ہے اسے، اور کل سلطان سلیمان کے حضور پیش ہوگا، اور تمہیں اس کی مدد کرنے کے لیے محل میں جانا ہوگا، دھیان رکھنا۔ تو پھر کام مکمل کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا؟ بس اور نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے صاحب۔ نہیں، تمہیں اندر جانے نہیں دیں گے وہ لوگ، اور ہاں، محل میں ہتھیاروں سمیت جانا بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اور مالکوچو بھی پہنچ گیا ہے وہاں، وہ تو چڑیا کو پر بھی نہیں مارنے دیتا ہے۔ اندر صرف تم جاؤ گے، اور میں یہاں رہ کر نظر رکھوں گا سب پر، اور سلطان سلیمان کو بھی اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس کے باہر آنے کا انتظار کرنا ہوگا، یقیناً وہ مسجد جائے گا، کیوں ایسا ہی ہے نا؟ وہ کس وقت کون سی مسجد میں جاتا ہے یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی کبھی۔ اس کی حفاظت کے لیے سینکڑوں سپاہی موجود ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اس سے زیادہ مناسب جگہ نہیں ہو سکتی کوئی، کیونکہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ بھیس بدل کر یہاں ضرور آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مالکوچو نے اب تک مخبری کر دی ہوگی، وہ اب شاید یہاں نہ آئے۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا انتونیو، ضرورت پڑی تو مہینوں بھی انتظار کریں گے۔ سفر کے لیے ہماری گزرگاہ ادرنا، فلیبے، اسکوپ، البسان اور اولونیا سے ہو کر جائے گی۔ ہر طرح کی اشیاء خوردونوش اور دیگر ضروریات کا سامان گوداموں میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ جہاز سمندر میں حفاظت کریں گے، ادرنا میں کچھ عرصے قیام کر کے ہمارے ساتھ شامل ہونے والی سپاہ کا انتظار کریں گے۔ اس کے بعد اولونیا پہنچ کر اطالیہ کے ساحلوں کا رخ کریں گے۔ وینیدک والے علاقوں سے گزرتے ہوئے ہم کیا کریں گے پاشا محترم؟ وینیدک والے ہم پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، ہمیں اپنا لشکر بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ وینیدک والوں کی جانب سے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ وینیدک بالیوسا سے ملاقات بھی ہوئی تھی، دوچو ہمارا ساتھ دینے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچ رہے۔ وینیدک ہمارا دوست نہیں، وہ اپنا مفاد دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ ہم سے تجارت کرنے کی وجہ سے ہمارے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتے، لیکن سلطان معظم کے بھیجے ہوئے فرمان کے باوجود وہ لوگ فرانس کے شاہ فرانسوا کے ساتھ شارپلین کے خلاف محاذ کھولنے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ یہ مسئلہ ان کی مجلس نے مل کر حل کر لیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں پاشا۔ وینیدک کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شارپلین یا پوپ کے ساتھ مل کر خفیہ اتحاد بھی قائم کر لیا ہو۔ مجھ ناچیز کو اسی طرح کی خبریں مل رہی ہیں۔ لطفو بادشاہ غلط سوچ رہے ہیں، وینیدک والوں پر شک کرنا فضول ہے۔ وہ خامخواہ ہم سے دشمنی کر کے دو طرفہ آگ میں نہیں پھنسیں گے۔ ایاز پاشا، ہم نے وینیدک سے کافی عرصے سے جنگ نہیں کی، لیکن ہمارے بزرگوں نے سب سے زیادہ جنگیں انہی کے ساتھ لڑی ہیں، بلکہ ہماری سرزمین کے ساحلوں پر بنائے گئے بعض اہم قلعے ابھی تک انہی کے قبضے میں ہیں۔ لطفو پاشا، ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سب سے بہتر جانتے ہیں آقا، لیکن ضرورت پیش آنے پر ہمیں اپنی گزرگاہ بدلنی پڑے گی اور اپنی سپاہ کو وینیدک کے اطراف سے لے جانے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ایسی تدبیر ذہن میں رکھی جائے۔ زمرد آغا کہاں ہے؟ پورے دن نظر نہیں آیا، بلاؤ اسے یہاں۔ شہزادی، زمرد آغا محل میں نہیں ہے۔ میری اجازت کے بغیر کہاں چلا گیا؟ آج صبح انہیں محل سے بھیج دیا گیا شہزادی، وہ اب کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ کیا کہہ رہی ہو خاتون؟ کس نے بھیج دیا اسے؟ آپ کی والدہ حرم سلطان کا حکم تھا۔ امی، کیا ہم ادرنا نہیں جائیں گے؟ بابا نے ہمیں لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں لے کر جاؤں گی آپ کو، ہم گھڑ سواری بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں جاؤں گا،
عثمان میرا بہادر بیٹا. حور جہاں، عثمان، بتائیے کیسے ہیں آپ دونوں؟ جی خاتون، بچوں کو کمرے میں لے جائیں. آپ کا جو حکم شہزادی. جی خیریت تو ہے سب. کیسے آنا ہوا آپ کا یہاں شاہ سلطان؟ کیا میں اپنے ہمشیرہ سے ملنے نہیں آ سکتی حسینہ؟ ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہے، کیونکہ آپ جس وقت مجھے حسینہ کہہ کے شفقت ظاہر کرتی ہیں یقیناً اس کے پیچھے کوئی بری خبر ہوتی ہے. برا کچھ نہیں ہے، میں صرف تمہاری وجہ سے پریشان ہوں. تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، نہ کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو. بیمار نہ ہو جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے. تم خود کو سنبھال نہیں پا رہی. دراصل کچھ عرصہ یہاں سے دور رہنا تمہارے لیے بہتر ہوگا. ہاں، بچوں کو لے کر اگر منیسا چلی جاؤ تو تم سب کے لیے اچھا رہے گا، اور مصطفیٰ تمہیں وہاں دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا. میرے جانے کی بات کہاں سے نکل آئی؟ کہیں آقا نے تو نہیں بھیجا آپ کو یہاں؟ حسینہ، اب میں بچی نہیں ہوں شاہبان، وہ دن گزر چکے ہیں. حقیقت جو بھی ہے بتائیں مجھے. آقا تمہیں کل ہونے والے حادثے میں ملوث سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے ایک فیصلہ کیا ہے تمہارے لیے. تم اپنے بچوں کے ساتھ منیسا جاؤ گی. کیا یہی فرمایا ہے آقا نے؟ میری جان لے لیں تو مجھے بھی نجات مل جائے، لیکن اس عذاب میں زندہ رہنے کے لیے مجھے منیسا بھیجنے کا فیصلہ دے دیا. ملکہ، آپ کی خدمت کرنا میرے لیے قابل فخر ہے. میں آپ کی شکر گزار ہوں. فارحہ کالفا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا. آج کے بعد میری جان تمہاری امانت ہے. والدہ، مہر ماں، میری پیاری شہزادی، خوش آمدید. میں بالکل خوش نہیں ہوں. زمرد آقا کو محل سے بھجوا دیا آپ نے؟ ہاں درست ہے، اسے بھیجنے کا حکم دے دیا. میرے خدمتگار آقا کو مجھے خبر دی بغیر کیسے بھیج سکتی ہیں آپ والدہ؟ مہر ماں، اپنی حد پہچانو. اب کیا اپنے فیصلوں پر تم سے مشورہ کروں گی میں، اور ہاں، اس کا سبب بھی تم اچھی طرح جانتے ہو. وفاداری سے میری خدمت کرنے کے سوا اور کیا گناہ تھا اس کا؟ میں جانتی ہوں کیسی خدمت پہ معمور تھا وہ. ایک آغا کا تمہارے ساتھ وفادار ہونا اچھا ہے، لیکن پہلے اسے میرا وفادار ہونا چاہیے. یہاں سے وہاں مکتوب لے جانے والا آغا میں نہیں چاہتی تمہارے پاس. گلفام خاتون، بہت سے لوگ دیکھے ہیں مگر آپ جیسا ظالم نہیں دیکھا ملکہ. کیا آپ کا ضمیر کبھی ملامت نہیں کرتا؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اب ایسا کیا کر دیا ہے میں نے؟ آقا خزینہ سلطان کو منیسا کے محل بھجوا رہے ہیں. کون جانے کہ آقا کو کیا کیا بتایا ہوگا، نہ جانے شہزادی پر کیسے الزامات لگائے ہوں گے. اس فیصلے کے بارے میں تمہیں ابھی معلوم ہوا ہوگا گلفام خاتون.
लेकिन मुझे इस पर दुख भी नहीं हुआ क्योंकि हर चीज की कोई हद होती है। खजीना सुल्तान मासूम है, फिर कैसा बदला है ये? कैसी मासूमियत गुलफाम खातून? फारिहा काल्फा नहीं होती तो मेरी जान ले ली जाती, मैं तो मर चुकी होती अब तक। मासूम है वो। वालिदा ये आप क्या कह रही हैं? क्यों मरने वाली थी? देख रही हो तो मेरी औलाद को खबर भी नहीं है इस बात की, किसी को नहीं बताया, इसलिए कि सब बातों के बावजूद मैं ये नहीं चाहती थी कि खजीना सुल्तान की हकीकत इनको पता चले। दुआ मांगती हूँ अपने रब से मैं, एक दिन आपके बच्चे भी आपका हकीकी चेहरा जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह। गुलफाम खातून फौरन बाहर चली जाओ यहाँ से और मुझे नजर तक मत आना। मुस्तकिल नहीं जा रही हो तुम, जरूर वापस आओगी। मैं कहीं नहीं जा रही और न ही मैं जाऊंगी, समझिए आप। जब तक मैं ना चाहूं कोई भी मुझे नहीं निकाल सकता मेरी मर्जी के बगैर। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा महल है, इब्राहिम और मीरा, हमारी इस महल में शादी हुई थी। अच्छा बुरा जो भी था हमने यहीं पर देखा। खजीना, खुद को परेशान मत करिए, कोई भी ताकत मुझे यहां से नहीं निकाल सकती। जब तक यहाँ रहोगी तुम्हारा ठीक होना मुमकिन नहीं। तुम्हारी इस हालत का बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, कम से कम उनके लिए कुछ अरसे तक। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं, मेरी बात समझे। उन्हें बता दे जाके, इस महल से सिर्फ मेरा जनाजा ही निकलेगा। गुलफाम खातून आई थी और मुझे खजीना सुल्तान के मनीसा जाने के बारे में बता रही थी। हाँ, मैंने यही मुनासिब समझा। सुलेमान मासरत चाहती हूँ मैं, लेकिन मेरी आरज़ू है कि इस फैसले पर दोबारा गौर कर लीजिए आप, क्योंकि वो यही समझेंगी कि ये सब कुछ मैंने करवाया है और खजीना सुल्तान वैसे भी दुख में है। कुछ वक्त गुजर जाएगा तो जरूर संभल जाएंगी वो। तुम तसल्ली खातिर रखो हुरम, खजीना के लिए यही मुनासिब है। आओ। मेरे आका शाह हुबान सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो से। मेरे आका, खजीना से बात हो गई तुम्हारी? आका अगर मुनासिब हो तो बात हो गई, उसने जाने से इनकार कर दिया। इब्राहिम, तुमने ये धुन आखिरी शब्द सिखाई थी, मैंने सीख लिया अब ये धुन, इसे हमेशा जारी रखूंगी मैं।
उसकी अम्मी उसे सोने से पहले सुनाती थी है। वो मैं ही थी, हुरम पर हमला करवाने वाली मैं थी। अगर मेरा बस चले तो अपने हाथों से उसका दिल निकाल दूं। शायद इस तरह मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि उसने मेरी जान ली है। मैं भी उसकी जान लेना चाहती हूँ। आका से दरखास्त की है, अपने फैसले पर दोबारा गौर करने की गुजारिश की है मैंने। मालूम है शहजादी की सेहत ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में उन्हें रियायत मिल जाएगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हुरम, मुझे यकीन है आका तुम्हारी बात मान लेंगे। शहजादी ऐसे वाकयात को हमारे दरमियान रोनुमा होने की इजाजत ना दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई गलत फहमी हो। इस जिद का कोई फायदा नहीं खजीना, तुम जाओगे। माजी याद करने या माजी में रहने से बेहतर है तुम चली जाओ। सेहतयाब होने के लिए तुम्हें जाना होगा, भूलने के लिए तुम्हें जाना होगा। मैं ठीक होना ही नहीं चाहती, अब भूलना भी नहीं चाहती मैं। और इंसान अपने साथ की गई ज्यादती को कैसे भूल सकता है, जुल्म को कैसे भूल सकता है? क्या इंसान ऐसी चीजें भूल सकता है? खजीना, आप मुझे भेजना चाहते हैं क्योंकि आप मेरी नजरों की ताब नहीं ला सकते, ऐसा ही है ना? क्योंकि जब आप मुझे देखते हैं तो आपका ज़मीर मलामत करता होगा, इब्राहिम की याद आती होगी। इस वजह से मुझे आप खुद से दूर करना चाहते हैं। कल तुम्हें लेने आएंगे खजीना, तुम अनीसा जाओगे। दूसरी सूरत में तुम्हारे बच्चे छीन लूंगा, क्योंकि तुम उनकी देखभाल नहीं कर सकते। मैं इब्राहिम, हर मुकाम से ठुकराया जाने वाला इब्राहिम, दर दर की खाक छानने वाला, अपने ख्वाबों में भी खुद को इधर कभी उधर भटकता देखने वाला, महरूमियों की आग में जलने वाला, खुद पर मीठी नींद हराम करने वाला इब्राहिम। इब्राहिम, बहुत याद आती है तुम्हारी। हर बार तुम्हारे जाने के बाद वक्त थम जाता है मेरे लिए। तुम्हारा सोचते हुए मेरे रात दिन गुजरते हैं। मेरी जिंदगी की शब सियाह में रोशनी बिखेर देने वाली शहजादी, चांद और सूरज कहना गए हैं, चमक ऐसी है कि इस गुलाम की बिनाई पर हर्फ आने लगा है। अब मेरी बिनाई शहजादी की मोहब्बत ही लौटा सकती है।
मैं आपको लिखती रहूंगी, आप भी मुझे खबर भिजवाती रहिएगा। सफर आसान हो शहजादी। शहजादी, हुरम, इंशाल्लाह वहां जाना खजीना सुल्तान के लिए बेहतर साबित होगा। सेहतमंद हो जाएंगी वो बीमार नहीं है हुरम, कुछ अरसे आराम करके वापस आ जाएगी। हाँ, ऐसा ही है। अल्लाह किसी को भी ऐसा गम ना दे कभी भी। आमीन। शहजादी, आपके और आपके अहले खाना के लिए नया महल मुंतखब कर लिया है मैंने। चंद ही रोज में तैयार हो जाएगा वो। तुमने मुंतखब किया है क्या? आका ने खास तौर पे मुझे तवज्जो देने के लिए कहा था इस पर। महल कुछ दूर है लेकिन बहुत ही शानदार महल है। आप जब चाहें जाकर देख सकती हैं। आराइश जारी है और आप उसमें तब्दीली भी करवा सकती हैं अगर चाहें तो, अपनी मर्जी से। जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ज़ौक़ पर एतमाद है। शुक्रिया। बोगदान के सफीर दिमित्री कांताकुज़ेन आए हैं। उसकी तलाशी ले ली है? जी जनाब। ठीक है। मेरे आका, बोगदान के सफीर दिमित्री कांताकुज़ेन आए हैं, आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। जेवानी, तुम हमारे लिए क्या खबर लाए हो? अंतोनियो प्रीमादो इस्तांबुल में बोगदान के ताजिर के साथ है पापाए मोहतरम, और फिर वो वहां से सफीर के हमरा महल जाएगा। खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्द सुल्तान सुलेमान की मौत की खबर सारी दुनिया में फैल जाएगी। खुदा करे ऐसा ही हो कार्डिनल, और दुआ करो कि तुम्हारी बात सच साबित हो, वरना सुलेमान ईंट से ईंट बजा देगा। सिर्फ रोमा ही नहीं बल्कि पूरे इतालिया को राख कर देगा। खुदा हमारी मदद करे, बस यही दुआ है पापा मोहतरम। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान सुलेमान ये है क्या? हाँ, यही है। अब चलिए यहाँ से। बादब, खजीना सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। शहजादी, माहिदौरा, जब खबर मिली तो यकीन नहीं आया। आका के इस फैसले पर हैरत है मुझे। फिक्र मत करो तुम, पहली फुर्सत में वापस जाऊंगी मैं। ये सब हुरम का खेल लगता है मुझे। मुस्तफा कहाँ है? महल में है क्या? वो आपका मुंतजिर है शहजादी।
वेनेदिक का गैर जानबदार होना आम है। वो तिजारत और अनाज के फरोग के सबब हमारे मोहताज हैं। तिजारत के जरिए वेनेदिक वालों पर काबू रखना होगा। दूसरी सूरत में खैरुद्दीन पाशा की इमदाद हम तक नहीं पहुंच सकती। हमें अब मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मौसम सरमा से बेशतर फतह हासिल करनी होगी। दुरुस्त। इब्राहिम पाशा को इस सफर की बहुत ख्वाहिश थी तशय्यली। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो सालार आजम के तौर पर सफर में शामिल होते तो हम बासानी अतालिया को फतह कर लेते हैं। आप बरहक हैं शहजादे। अयाज पाशा कतन उनकी जगह नहीं ले सकते। इसके अलावा वेनेदिक दोचो के साथ पाशा के ताल्लुकात अच्छे थे। वो हर तरीके से उन्हें जंग करने से बाज रखते हैं। आओ। शहजादी खुश आमदीद। इज्जत बख्शी आपने यहां आकर। मुस्तफा, हमारे साथ ये क्या हो रहा है मुस्तफा? तुम देख रहे हो ना सब? शहजादी ये भी आपका महल है। आप और आपके बच्चे हमारे लिए बहुत अहम है। मैं जब तक जिंदा हूं आपको रंजीदा नहीं होने दूंगा। उस्मान, तुमसे कितनी मर्तबा कह चुका हूं, निजाम और इंतजाम में एहतियात बरतनी होगी। जरा अपने ठेले का मुआयना तो करो। चलो सब चीजें ठीक करो और तरतीब से रखो। चलो। नाराज मत हूँ गाजी साहब, मैं भी ठीक कर देता हूँ। उस्ताद चले भी। माजरत चाहता हूँ, आपकी आमद की खबर न थी। बाली साहब काफी दिनों से मुझे महल से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। आज आपके दौरे का सुना तो आपसे मिलने को दिल चाहा। इज्जत अफजाई की आपने। काम कैसा चल रहा है साहब? कोई खास नहीं जनाब, ज्यादा अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं। ये बात तुम कह रहे हो साहब? हैं? इस बाजार में सबसे ज्यादा दौलत कमाने वाले दुकानदार तुम नहीं हो क्या? मकबूल इब्राहिम पाशा की मौत के बाद ज्यादा मुनाफा कमाएंगे ये कहा गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सूरत हाल मजीद खराब हो गई। तुम्हारे मुनाफे का इब्राहिम पाशा से क्या ताल्लुक है? इब्राहिम पाशा गैर मुस्लिम ताजरों को ज्यादा अहमियत देते थे, काफिर ताजरों की सरपरस्ती करते थे। खुदावन, अपने ईसाई गुलामों को सुल्तान सुलेमान और बारबरूस के गारतगर लश्कर से महफूज फरमा। इनके खिलाफ हमें ताकत अता कर। आमीन। शुमाल, जुनूब और मशरिक व मगरिब के खुदावंद, हफ्ते
हफ्ते में एक मर्तबा मजलिस लगाई जाएगी। कानून के हर नुक्ते पर गौर किया जाएगा। ज्यादा गौर व खौस की जरूरत है उस्ताद जलेबी, लेकिन शायद मेरा मनसब इसमें माने हो रहा है। आप बरहक हैं। इस्तांबुल के मामला तो मसाइल खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हो सकता है कानून नामे को नाज़मों के सुपुर्द करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन पर जिम्मेदारियां कुछ कम हैं। मेरे ख्याल में आपको मुंतजिम बनाने की जरूरत है। मेरा माल दो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? हटो पीछे, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हटो पीछे हटो। हमें यहां से निकलना चाहिए। आओ आओ हुरम। शहजादी, फिलहाल आपके महल में कुछ काम बाकी है, मगर आप उजलत से काम ले रही हैं। मुकम्मल होते ही आप तशरीफ ले जाइएगा। नए महल में मुंतकिल होने के बारे में तुम्हें किसने बताया हुरम? मैं खजीना के महल मुंतकिल हो रही हूं। कम से कम उसकी वापसी तक वहीं कयाम करूंगी। मुझे इसकी खबर नहीं थी। अचानक फैसला किया, तुम्हें खबर देने का मौका नहीं मिल सका। तो फिर आका को भी इसकी खबर नहीं होगी यकीनन। अलबत्ता उन्हें मैंने मालूमात फराहम कर दी थी, वो काफी मुतमईन है। खजीना सुल्तान के महल में आपका मुंतकिल होना मुनासिब नहीं समझा मैंने, वरना जरूर सोचती। खैर अच्छा हुआ, इस तरह आप करीब भी रह पाएंगे हमसे। शहजादी, मलिका, तुम्हें पता है शाह सुल्तान खजीना सुल्तान के महल मुंतकिल हो रही हैं। क्यों मुझे इसकी खबर नहीं हो सकी? मलिका, ये कैसे मुमकिन है? मैं खुद आपसे सुन रहा हूँ। सुंबुल आगा, तुम्हारा काम यह है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी तफसीलात हासिल करना और फिर वो सारी तफसील मुझ तक पहुँचाना। पहले तो तुम इस काम में बहुत ताक हुआ करते थे, मगर अब क्या हो गया है तुम्हें? मलिका, आप बजा फरमा रही हैं बिल्कुल। मेरी नजरें तो उन्हीं पर थी, लेकिन शायद उन्होंने सब कुछ खामोशी से किया हो, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? बाद में बात करते हैं। शहजादी, तुम बरहक थे। पोप ने आखिरकार मुझ पर चुपकर वार कर ही दिया। शुक्र है कि आप सलामत हैं मेरे आका। यहां किस किस से उनका राब्ता है नहीं मालूम, लेकिन आपके इतने नजदीक पहुंचने का मतलब है कि वो लाजमी तौर पर किसी करीबी शख्स से मालूमात ले रहे हैं। ये गद्दार कौन है तुम उन्हें सामने लाओगे, इसमें कोई शक नहीं। इसके लिए काफी वक्त है तुम्हारे पास, क्योंकि आज के बाद तुम यहीं पर मेरे साथ रहोगे। आपके लिए मेरी जान भी फिदा है आका, लेकिन क्या मुझे अपने मनसब पे वापस नहीं जाना चाहिए? मैं अपने हमरा हमेशा तुम जैसा वफादार और बाएतमाद आदमी चाहता हूं। अपनी जान मैं सिर्फ तुम्हारी अमान में ही सौंप सकता हूं। मालकोचू बाली साहब, आज के बाद मैं तुम्हें अपना मुसाहिब खुसूसी तैनात करता हूं।
मेरे आका, शर्फ है मेरे लिए। ठहरो तो सही, कहाँ जा रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से सलीम, वरना मैं अपना गुस्सा तुम पर उतार दूंगा। तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? आका ने खुद ये फैसला किया है। तुमने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया है कि मुझे ना लेके जाएं, वरना आका मेरे होते हुए तुम्हें सफर पे कैसे लेके जा सकते हैं? अपने जुमलों पर गौर करो बयाज़त। क्यों, क्या हुआ? झूठ कहा क्या मैंने सलीम? तुम्हें तो तलवार भी पकड़नी नहीं आती। फौरन माफी मांगो मुझसे। नहीं मांगूंगा, तुमसे कहा माफी मांगो, वरना क्या करोगे तुम? औरतों की तरह शिकायत लगाओगे फिर मेरी? मलिका, इससे आपको फायदा होगा। इसमें थोड़ा सा पुदीना मिला दिया है, आप राहत महसूस करेंगी। शुक्रिया फारिहा। सलीम, ए मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने किया ये सब कुछ? बताओ मुझे बियासत, तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ? क्या वही सफर वाला मसला था? मैं सलीम से ज्यादा ताकतवर हूँ, उससे ज्यादा अच्छी तलवार चलाना जानता हूँ और घुड़सवारी भी। फिर मैं साथ क्यों नहीं जा रहा? कितनी बार समझा चुका हूँ, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, वही जाने का हकदार है। ये हक तलफी है, वो सिर्फ 1 साल ही तो बड़ा है मुझसे। तुम बच्चों की तरह सोचना छोड़ दो। हम मिलकर बहुत से सफर तय करेंगे, सब्र से काम लो। मतलब कि तुम यहां हो। मुझे फौरन वजाहत चाहिए, क्यों तुमने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया? पहले इसने मारा था वालिदा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हाथ नहीं उठा सकते। और तुमने सलीम से जो कुछ कहा है मुझे मालूम है। फौरन माफी मांगो अपने बड़े भाई से। आप क्यों हमेशा इसका दिफा करती हैं वालिदा? बाबा भी यही कहते हैं कि आप हमेशा इसकी हिमायत करती हैं। क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता? माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूँ। दोबारा कहो। माफ कर दो मुझे सलीम। सलीम, अब तुम भी अपने भाई से माफी मांगोगे। मगर मैंने क्या किया है वालिदा? माफ कर दो मुझे। ठीक है, आइंदा तुम दोनों झगड़ा नहीं करोगे। अगर मुझे कोई भी शिकायत सुनने को मिली तो फिर तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अहमद, तुम सलीम को लेकर बाहर जाओ। चलो। बियासत, मेरे बहादुर बेटे, बाबा तुम्हें सफर पर नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि तुम्हारे ज़िम्मे एक और बहुत अहम काम है। अहम काम? अगर सब चले गए तो मैं अकेली क्या करूंगी? महरमा क्या करेगी? कौन हमारी हिफाजत करेगा, सोचा है तुमने? जहांगीर अभी बहुत छोटा है। मुझे तुम जैसे एक बहादुर शहजादे की जरूरत है, समझ गए?
लेकिन सूरत हाल दरअसल कुछ और है। लुत्फो पाशा। खुश आमदीद रुस्तम पाशा। दयारे बाकर के हालात सुनाओ। खुश तो होना अपने नए मनसब पर। बहुत खुश हूँ पाशा। माशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो मजीद ऊंचा मनसब भी मुझे नसीब होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन खुदा को ऐसे कामों में मत घसीटो। इस मकाम तक कैसे पहुंचे हो, किसकी मदद से पहुंचे हो, सब जाहिर है। बिल्कुल जाहिर है पाशा। मुझ पर नवाजिश है आका की। बाअदब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। वाली साहब अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं जानते क्या तुम? आका ने इन्हें अपने लिए मसाहिब खुसूसी तैनात कर दिया है। रुस्तम, शहजादे मोहतरम, पाए तक से खबर आई है। आका ने मुझे सफर में शरीक करने से इनकार फरमा दिया। इस्तांबुल का मुहाफिज मुस्तफा पाशा को तैनात कर दिया गया है। अनातोलिया के मुहाफिज महमद पाशा हैं। अब मुझे मनीसा में रहने का हुक्म दिया है। मैं 1 बरस से तैयारियां कर रहा हूं। मैं भी शर्मदार रह गया शहजादे, क्योंकि आज से 6 माह कबल आपको सफर की तैयारियों का हुक्म दिया गया था। लगता है कि आका ने मुझे नजरअंदाज कर दिया है। ऐसे मत सोचिए शहजादे। आका ने अगर ऐसा मुनासिब समझा तो जरूर उसका कोई सबब भी होगा। मैं तुम्हें बताता हूं सबब। खुर्रम सुल्तान। पाशा हजरात, महीनों से आप तैयारियों में मसरूफ हैं और बिलाखिर हम सफर पर रवाना हो रहे हैं। मुस्तफा बादशाह इस्तांबुल के मुहाफिज होने के अलावा सल्तनत के मसाइल पर भी तवज्जो देंगे। बोस्निया के सूबेदार गाजी हिसरिफ साहब ऑस्ट्रिया और अनातोलिया के सूबेदार महमद पाशा ईरान की जानिब से खतरात के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लश्कर हुमायूं नकलो हरकत का आगाज कर चुका है। खिजर खैरुद्दीन पाशा हमारे पहुंचने से पहले वहां हमारे लिए हिफाजती इक़दामात करेंगे और अयाज पाशा लश्कर की कमान संभालेंगे। पाशा हजरात, मुझे आप सब पर एतमाद है। अल्लाह की रजा और आप लोगों की जुर्रत से दुश्मन हमारे सामने जरूर पसपा होगा। हमारे रास्ते आसान, हमारी तलवार काटदार हो। आमीन। शहजादे, क्या ये सच है? तुम सफर में शिरकत नहीं कर रहे? आका ने यही कुछ मुनासिब समझा। तो फिर सल्तनत के वकील के तौर पे पाया था? कोई भी मनसब अता नहीं किया गया मुझे। मनीसा में ही रहूंगा। इसके अलावा आका के सफर में शहजादा महमद और शहजादा सलीम रफाकत करेंगे उनकी। इस फैसले के पीछे कौन हो सकता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना? शहजादी, आका के फैसलों के सामने मेरा सर हमेशा झुका रहेगा। नहीं मुस्तफा, तुम अपना सर नहीं झुकाओगे, हमेशा सर ऊंचा रखोगे। ये हुर्रम का किया धरा है। उसने आका के जहन को जकड़ लिया है। मकसद एक ही है, तुम्हें दूर रखना। लेकिन इस पर तुम बिल्कुल खामोश नहीं रहोगे। फिर क्या कर सकता हूं मैं? आका ने तो मुझे पाया तक भी नहीं बुलाया है। मुस्तफा, इस तख्त पर तुम्हारा हक है। इसे हर किस हुर्रम के हवाले मत करना।
लेकिन जब तक वो वहां है ये मुमकिन नहीं हो सकता। शाहबान भी लगता है कुछ नहीं कर सकी या करना नहीं चाहती। सिर्फ एक ही तरीका है, अपना मुकद्दर तुम्हें खुद बनाना होगा। आ जाओ। शहजादी निगार खातून तशरीफ लाई हैं। आने दो। शहजादी आओ निगार। खुश आमदीद। तुम्हें फिर से पाया तख्त पे देखकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया शहजादी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माजरत चाहती हूँ लेकिन इस महल में आपके मुंतकिल होने का सुनकर मुझे। इसमें हैरत की कोई बात नहीं, आका के करीब रहना चाहती हूँ मैं। लेकिन हुरम सुल्तान ने जरूर कोई ना कोई एतराज किया होगा। वो अपनी तरफ से मुझे आका से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। रुस्तम पाशा कैसे हैं? वो सफर पर रवाना हो रहे हैं शहजादी। उनके वापस आने तक मैं पाया तख्त में ही रहूंगी। आला, तुम्हारे हमरा अभी बहुत से काम करने हैं निगार। मैंने सुना है कि शहजादे मुस्तफा सफर में शरीक नहीं हो रहे और आका ने उन्हें पाया तख्त भी तलब नहीं किया। ये दिन देखना हमारे नसीब में था रुस्तम। आका मेरे शहजादों को अपने हमरा लेकर जाना चाहते हैं। मेहमत और सलीम को तुम्हारी हिफाजत में देना चाहती हूँ मैं। जब तक सफर में हो उनके साथ ही रहना। आप फिक्र न करें मलिका, शहजादे मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे। वाली साहब के मसाहिब खुसूसी बनने पर आपकी क्या राय है? कहीं वो रुकावट तो नहीं बनेंगे हमारे रास्ते में? रुस्तम, बाली साहब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो आका और इस सल्तनत के वफादार और बहुत अहम शख्स हैं। एक जमाने में इब्राहिम पाशा भी ऐसे ही थे। रुस्तम आका, तुम इसे छोड़ो। लुत्फो पाशा की खबर तो मुझे। जानते हो असल खतरा तो उनसे है। कुछ देर को उनसे बात हुई थी मेरी। वो मुझे ताना दे रहे थे कि इस मर्तबे पर आप लेकर आई हैं मुझे। दुरुस्त बात पर क्या कह सकते हो? अपनी काबिलियत के अलावा मुझसे वफादारी के सबब तुम पाशा बने हो रुस्तम आका, ये बात ना भूलो। इस बात को याद रखोगे तभी कामयाब रहोगे तुम। अगर मेरी वफादारी पर जर्रा बराबर भी शक है आपको तो मैं फौरन इस मनसब से दस्तबरदार होने को तैयार हूं मलिका। अगर मुझे शक होता पहले ही तुम बरतरफ हो चुके होते रुस्तम पाशा। लुत्फो पाशा की बात करो तो लगता है कि इब्राहिम पाशा के अंजाम से कोई इबरत हासिल नहीं की उन्होंने, क्योंकि अपनी हिम्मत शाह सुल्तान से ले रहे हैं वो। शाह सुल्तान से जरा होशियार रहें आप तो जानती हैं हम सफर पर जा रहे हैं, आप तन्हा रहेंगी यहाँ। अगर उसने किसी भी ऐसी हरकत की जुर्रत की तो उसे भी खजीना सुल्तान के पास भेजना चाहती हूँ मैं। शहजादी, मेरे इल्म में आया है कि शहजादे मुस्तफा सफर पर नहीं जा रहे। दरअसल आका ने यही मुनासिब समझा है।
शहजादे के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। खजीना सुल्तान के साथ जो कुछ हुआ सब जानते हैं, फिर भी उन्हें बच्चों के साथ रवाना करना मुनासिब नहीं है। खजीना को मनीसा गए 1 बरस गुजर गया। उसे और बच्चों को बहुत याद करती हूँ। अब बहुत हो चुका शहजादी। वो वक्त कब आएगा जब हुरम सुल्तान से उसके किए का बदला लिया जाएगा? वक्त आ चुका है निगार। आका कल सफर पर रवाना हो रहे हैं और हुरम अकेली रह जाएगी। यानी अब खेल खत्म। बाअदब मेहरमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। शहजादी। बाली साहब, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैं तो घुड़सवारी करने आई थी। जो हुक्म शहजादी। शहजादी के लिए घोड़ा तैयार किया जाए। आपकी रवानगी से कबल आपसे ये मुलाकात मेरे लिए खुशी का बायस है, क्योंकि शहजादे महमद और शहजादे सलीम की हिफाजत मैं आपको सौंपना चाहती थी। आप तो जानते ही हैं कि वो पहली बार जा रहे हैं। आप बिल्कुल फिक्र न करें शहजादी, मैं उनका ख्याल रखूंगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आपकी सलामती से वापसी की दुआ करूंगी। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये तावीज आपको हर मुसीबत और हर बला से बचाएगा इंशाल्लाह। ये मुझ पर आपका लुत्फ करम है शहजादी। इसे अपने पास से कभी अलग नहीं करूंगा। शहजादी, तुम भी यही हो? अभी पहुंचा हूं शहजादी। सफर के लिए बुलवाया गया है। आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूं शहजादी। शुक्रिया रुस्तम आगा। घुड़सवारी के लिए आई थी, बाली साहब से भी मिलना हो गया। फिर किसी वक्त कर लूंगी घुड़सवारी। बाली साहब, आपसे मुलाकात हो गई तो मुबारकबाद भी दे दूं, क्योंकि अब तो आप मसाहिब खुसूसी बन गए हैं आका के। आका ने ऐसा ही मुनासिब समझा। आला आला, लेकिन ये बहुत दुश्वार गुजार और खतरनाक काम है। मालूम है ना, एक जमाने में इब्राहिम पाशा भी बहुत करीब थे आका के। ख्याल रहे कि मरहूम इब्राहिम पाशा के इस अजीम तुर्क सल्तनत पर बहुत से एहसानात हैं। वो सल्तनत के बहुत अहम आदमी थे। उनके रास्ते पर चलना मेरे लिए बाइस शर्फ है। मेरी हुरम। मेरे सर्राए जान सुल्तान, आप कल किस वक्त रवाना हो रहे हैं? अल्लाह की रजा से कल सुबह सवेरे ही। शहजादे तैयार हैं क्या? सफर पे जाने के शौक से उनकी आंखों में नींद नहीं है। बहुत खुश हैं और बहुत पुरजोश हैं, लेकिन बयासत उदास है बहुत। मैंने समझाया भी मगर तसल्ली नहीं हुई। वो सलीम से ज्यादा पुरजोश है मालूम है, लेकिन हर चीज का वक्त मुकर्रर है। सुलेमान, फिर से वक्त हिजर आ रहा है। आज शब आपके साथ रहना चाहती हूँ। आंखें बंद किए बगैर जी भरकर आपको देखना चाहती हूँ मैं। मेरी हुरम।
मेरे सब दुखों का मदावा हो तुम मलिका। मेरा दिल तुम्हारे वजूद पर जान देता है, आशना है वो तुम्हारे सब एहसासात का। शायद तुम समझती हो तुम्हारा हाल दिल में नहीं जानता, तर हकीकत हम दोनों एक जान दो कल्ब हैं। तुम्हें जब भी जरा सी ठेस पहुंचती है, तुम्हारा चेहरा देखते ही सब कुछ जान लेता हूँ। मेरे सहरा जैसे वजूद में तुम बादे नसीम बनकर आई हो, अब्रे रहमत के मानिंद आई हो तुम हुरम, वरना मुहिब्बी का वजूद हमेशा प्यासा ही रहता। ऐ मेरे जानो दिल और रूह के मालिक मेरे महबूब। पापा मोहतरम, सुल्तान सुलेमान ने सफर का आगाज कर दिया है। वो हमारी जमीनी सरहद की जानिब बढ़ रहा है और बारबरोस अपने बहरी बेड़ों के हमरा समंदर में है। उनका अगला हदफ रोमा है। ए खुदा वंदा, तू ईसाई औलादों की हिफाजत फरमा। शहजादी, खुश आमदीद हुरम। शुक्रिया। आका को रवाना हुए 1 महीना गुजर चुका है। उस दिन से आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैंने भी इसी बाइस बुलवाया है तुम्हें। साथ बैठकर खाना तनावल करते हैं हम। आपको भी खुश आमदीद अफीफा खातून। बहुत शुक्रिया शहजादी। आप भी आइए। आका की कोई खबर आई क्या? अभी तक नहीं शहजादे, लेकिन मुझे यकीन है जरूर उनका कोई मकतूब आने वाला होगा। ये क्या है? बादाम का शोरबा, तुम्हारी किस्मत में लिखा था, जरा चखो तो सही तुम। ओहो, अपनी तरफ से कोई इजाद मत निकाला करो, कहीं जहर ना फैल जाए। ज्यादा बातें मत बनाओ, बहुत लजीज बना है, तुम चक्कर तो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या बनाया है तुमने? ओहो, इससे तो बेहतर था कि चने का शोरबा ही बना लेते। सुंबुल आगा। हाँ, क्या हुआ? एक आगा आपका पूछ रहे हैं। कौन से आगा हैं? आखिर क्या चाहते हैं वो मुझसे? खलील आगा नाम है, वो पहचान लेगा ये कहा, कोई बहुत अहम खबर है। चलो अब तुम जाओ, जाओ। खैर होगी इंशाअल्लाह। खैर तो है हुरम? माजरत चाहती हूँ शहजादी, ये आपकी वजह से हरगिज़ नहीं है। मैं तो अपने कमरे में भी एहतियात बरतती हूँ। 1 बरस पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ आपको मालूम ही है। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, खास तौर पर आका की गैर मौजूदगी में। एहतियात से काम लेने में ही फायदा है। सच कहती हो हुरम, हमें अपनी हिफाजत करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। हटो, सामने से हटो। कुछ कहना है क्या? मुझे बताओ। हुरम सुल्तान से मिलना है इब्ने आदम, एक बहुत ही अहम खबर देनी है उन्हें। फौरन कुछ बता रहे हैं मुझे। हटो यहाँ से। ठहरो यहाँ पर।
कितना वहशी आदमी है ये। महल में आप खुश तो है ना शहजादी? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, बिल्कुल खुश हूँ। मैं तो ये समझ रही थी कि यहाँ रहने में दुश्वारी होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी हो, खजीना सुल्तान का महल था ये, लेकिन छोड़ने पर मजबूर हो गई। और दूसरी तरफ मरहूम इब्राहिम पाशा की यादें भी बिखरी हुई हैं यहाँ। ये अब भी खजीना का ही महल है हुरम। वो एक ना एक दिन जरूर वापस अपने महल में आएगी। शहजादी माजरत चाहता हूँ, मुखल हो रहा हूँ। कहो मरजान। सुम्बुल आगा आए हैं, हुरम सुल्तान से मिलना चाहते हैं। कोई अहम खबर लेकर आए हैं। कहो आ जाए। शहजादी, शहजादी बहुत मासरत, महल वापस जाना पड़ेगा। खैर तो है हुरम, रात के इस वक्त क्या मसला हो गया? मेरा एक जाती मसला है शहजादी। कोई बुरी खबर नहीं होगी इंशाल्लाह। अफीफा खातून, आप यहीं ठहरे, बाद में आ जाइएगा। शहजादी। तुम्हें और कुछ नहीं बताया क्या उसने? नहीं मलिका, मैंने इसरार से पूछा लेकिन उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। खलील आगा ये है मलिका। मलिका माजरत चाहता हूँ, मुझे किसी पर एतमाद नहीं। तुम कौन हो? मेरा नाम खलील है, मनीसा से आ रहा हूँ। शहजादे मुस्तफा के अस्तबल खास में साइज की जिम्मेदारी निभाता हूँ। रुस्तम पाशा ने मुझे खुसूसी तौर पर भेजा है मलिका। क्या हुआ बताओ। मुझे भी इजाजत दें ताकि महल चली जाऊं। फिक्र हो रही है मुझे। ठीक कहती हैं, शहजादों के मुतालिक कोई बात हो सकती है। फौरन जाएं और क्या हुआ मालूम करें। शहजादी। शहजादी, खजीना सुल्तान का खास कासिद आया है, यह आपके लिए भेजा है। अल्लाह खैर करे। कोई मसला है क्या? ये बहुत संगीन इल्जाम है खलील आगा। क्या तुम्हें यकीन है अगर कोई गलती हुई तो पहले तुम्हारा सर काटा जाएगा? मुझे अफसोस है, ये सच है मलिका। हाँ। तुम जा सकते हो अब। अब हम क्या करेंगे मलिका? सुम्बुल आगा, इस आगा को क्या जानते हो? इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? मलिका, पहले कभी नहीं देखा मैंने। रुस्तम पाशा खलील नाम के एक आदमी का जिक्र तो किया करते थे। शहजादे मुस्तफा के खास अस्तबल में भेजा है, ये कहा था उन्होंने, खबरें जमा करने के लिए। जाओ, जाके फौरन मुस्तफा पाशा को लेकर आओ, फौरन। आपका जो हुक्म मलिका। खुदा गारत करे। शहजादी, कोई बुरी खबर है क्या?
मत पूछिए अफीफा खातून, मत पूछें। खजीना अपने आपे से बाहर हो चुकी। दूर रहकर पुरसुकून होने के बजाय उसके आसाब जवाब दे गए। मुस्तफा को भी बहका दिया है। मलिका, मलिका, मेरे लिए क्या हुक्म है? मुस्तफा पाशा, मुझे अभी अभी एक अहम खबर मौसूल हुई है। शहजादे मुस्तफा आका की गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर उनके तख्त पर काबिज होने का इरादा रखते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जाहिर है उन्हें खबर मिल गई होगी। किस खबर की बात कर रहे हैं? कुछ रोज कबल खबर मौसूल हुई, लेकिन मैं तस्दीक किए बगैर आपको मालूमात देना नहीं चाहता था। किस बारे में फौरन बताओ मुझे। मलिका, हमारे आका पर बेनफ्से के करीब हमला हुआ है। शदीद जख्मी होने का बताया गया है। इसके अलावा शहजादों के लापता होने की इत्तला है। फरमाइए मलिका। इस्तांबुल के मुहाफिज की हैसियत से इस अजीम सल्तनत की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर आयद नहीं होती क्या? और आका के सही सलामत वापस आ जाने तक शहजादे बयासत और जहांगीर की हिफाजत करना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाऊंगा मलिका। फौरी इकदामात करें। कुछ भी हो जाए, मेरी औलाद को जरा सा भी जरर नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आका की सेहत के मुतालिक मालूमात का इंतजार कर रहा हूँ मलिका। उस वक्त तक इस हादसे की किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये खबर फैल गई तो शहर में बगावत फूट पड़ेगी माजल्ला। शहजादे मुस्तफा ने पहले ही अपना लश्कर तैयार कर लिया है। पाया तख्त का रुख कर चुके हैं। उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है क्या पाशा मोहतरम? अगर इस बात में सदाकत है तो उन्हें कोई भी कुव्वत नहीं रोक सकती। रोकेंगे आप पाशा? इस बगावत को आपको कुचलना होगा पाशा। आका जब तक सांस ले रहे हैं उस वक्त तक किसकी हिम्मत है कि तख्त पर नजर रख सके? कौन जुर्रत कर सकता है? पाए तख्त में दाखिल होने से पहले उसका सर काट देंगे आप। इस किस्म की सूरत हाल में ऐसा करना मुश्किल है मलिका, क्योंकि बोस्तान वाले और इस्तांबुल में मौजूद तमाम यनीचर भी इसमें शामिल हैं। उनमें से कोई भी तुर्क सिपाही शहजादे मुस्तफा के खिलाफ तलवार निकालेगा, मेरा नहीं ख्याल। शहजादी, इसमें सिर्फ आप ही रुकावट बन सकती हैं। शहजादे को रोकिए वरना बहुत खून बहेगा। शहजादी, आप इत्मीनान रखें अफीफा खातून, उसे रोकने के लिए मेरे बस में जो भी हुआ करूंगी। लेकिन हुरम को ये मालूम नहीं होगा, वरना वो काम खराब कर देगी। लेकिन शहजादी, ये हयातो मौत का मसला है, कैसे छुपा सकती हूँ? फौरन हमें तदबीर आपसे जो कहा वो करें अफीफा खातून। हुरम को मालूम हो गया तो यह हादसा बद से बदतर हो जाएगा। इस मामले को मुकम्मल तौर पर खामोशी से हल करेंगे। शहजादे, शुक्र है आप मुझे मिल गए। मैं आप ही को तलाश कर रहा था। मेहमद भाई की किताबों को देख रहा था सुंबुल आगा। कोई मसला है क्या? वालिदा ने आपको याद फरमाया है। क्या हो गया, तुम परेशान क्यों हो? मलिका आपको खुद बता देंगी शहजादे, बस चलिए आप। आओ। शहजादी, मुकल होने की माजरत चाहती हूँ। रात के इस पहर क्या काम पड़ गया? आपकी वालिदा ने याद किया है आपको। आपकी तशरीफ आवली की मुंतजर है। वालिदा, खैरियत तो है ना सब? मेहरबान बयासत, आओ बैठो यहाँ आके।
आज के बाद तुम लोग सब यहाँ मेरे पास ही रहोगे। क्या मतलब आपका? तस्दीक के बगैर एक खबर मिली है और वो ये है कि आका पर सफर के दौरान हमला कर दिया है दुश्मनों ने। बाबा, मेहरमा इत्मीनान रखो तुम। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई है, सिर्फ उनके जख्मी होने की इत्तला है। मैंने तस्दीक करवाने का हुक्म दिया है फौरन। हकीकत जो भी होगी सामने आ जाएगी। महमद ब्रदर सलीम वो कैसे है वालिदा? मालूम नहीं है बेटे। दुआ करो कि सही सलामत वापस आ जाएं तुम्हारे पापा। उस वक्त तक हमें हिम्मत से रहना है और हर बात के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। समझ के बेआसत मेहमा। Validem emin misiniz? Mustafa abi böyle bir şey yapmaz. Mihrimah neden yapmasın? वो इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहता है। अपनी सिपा समेत लश्कर कशी करने वाला है वो। तख्त पर काबिज होने की नीयत रखता है। और उसके बाद क्या? नहीं, इजाजत नहीं दूंगी मैं। किसी को अपने बरादरान के साथ जुल्म करने नहीं दूंगी। मेहरमा पुरसुकून रहो और मेरी बात सुनो। मुश्किल दिन हमारे मुंतज़िर हैं, बहुत मुश्किल दिन। खुद पर काबू रखो। हर लम्हा अपने भाइयों के पास रहोगी तुम। उन पर से बिल्कुल नजर मत हटाना, क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। और याद रखना कि तुम भी किसी की बात पर एतबार नहीं करोगी हरगिज। समझ गई मेरी बात? वालिदा, आप मुझे खौफज़दा कर रही हैं। मेहरमा, तुम एक शहजादी हो और तुम्हारे बाबा इस जहान के बादशाह। तुम नहीं दुश्मन खौफज़दा होगा।
वालिदा, बाबा लौट आएंगे, ब्रादरान भी लौट आएंगे। उस रोज तक मैं आपकी पूरी हिफाजत करूंगा। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता वालिदा। शहजादे, मेरे बहादुर बेटे, अफीफा खातून को कहीं देखा है क्या? हमने नहीं देखा। अल्लाह मुझे सब्र दे। अफीफा खातून को देखा है क्या किसी ने? हाय, अफीफा खातून कब से आप ही को ढूंढ रहा था मैं। खैर तो है ना सुम्बुल आगा? बिल्कुल खैरियत नहीं है कसम से। हुरम सुल्तान कब से आपके मुंतजिर हैं। हो ऐसे कहो ना इब्ने आदम। अल्लाह हमारा अंजाम बखैर करे। कयामत के ऊपर कयामत आ गई है। चले चलते हैं, कयामत टूट पड़ी अफीफा खातून। अब हम क्या करेंगे वालिदा? मुस्तफा पाशा से बात हुई है। हमारी हिफाजत के लिए हर तरह के इक़दामात करेंगे। हमें इंतजार करना होगा बहरमा, सब्र से काम लेना होगा। वालिदा, इजाजत दें, मुस्तफा भाई से बात करती हूँ मैं, वो मेरी बात सुनेंगे। लगता है माहिदौरा सुल्तान और खजीना सुल्तान ने भड़काया है उन्हें। नहीं मेहरबा, तीर कमान से निकल चुका है। तुम्हारा बस एक ही फर्ज है, यहाँ अपने भाइयों के पास रहना और बस। आइए अफीफा खातून। मलिका। अफीफा खातून, सुम्बुल आगा ने सूरत हाल से आगाह किया आपको? नहीं, लेकिन मैं अंदाजा कर सकती हूँ। शहजादे मुस्तफा मोहतरम की पाए तख्त की जानिब पेशकदमी की इत्तलात मौसूल हुई है मलिका। मैं इसी वजह से आई हूँ आपके पास। आप कैसे जानती हैं ये सब कुछ? दरअसल आपके महल से रवाना होने के बाद शाह सुल्तान के पास एक खबर पहुंची। खजीना सुल्तान की जानिब से उनका ख्याल था कि आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए बताने से मना कर दिया था, लेकिन आपके इल्म में लाना जरूरी था। अच्छा तो ये बात है, शाह सुल्तान मेरे लिए बिल्कुल नहीं सोच रही, बल्कि खजीना और मुस्तफा का साथ दे रही हैं। क्या मालूम उनके साथ मिली हुई हो? हरगिज़ नहीं मलिका, नामुमकिन, नामुमकिन। मलिका, आप मुकम्मल इत्मीनान रखें, मैं आपके साथ हूँ। आका की वापसी तक हर तरह से आपकी हिफाजत करूंगी। अफीफा खातून, आपको आका के बारे में खबर मिली क्या? सफर के दौरान उन पर हमला हो गया, उनके मजरूह होने का बताया है। शहजादे भी लापता हैं। कैसे हैं कुछ भी मालूम नहीं हो सका। या रब, थोड़ी हिफाजत करना हमारी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? और इसी वजह से शहजादे मुस्तफा हमला कर रहे हैं हम पर। हमारे अलावा ये सब किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, ना आगाओं को, ना कनीसों को, किसी को भी। सुम्बुल आगा। फरमाइए मलिका। आका को मैं एक मकतूब लिखूंगी, उसे भेजने के लिए सबसे बाएतमाद और तेज रफ्तार कासिद चाहिए होगा मुझे। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिका। किसी अहम मसले की खातिर मुझे बुलाया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सब मालूम हो गया। मुझे पहले ही मालूम हो गया था शहजादी, इसी वजह से आपके महल से आ गई थी मैं। क्या हो रहा है? गुलफाम खातून, तुम्हें सूरत हाल बताती हूँ। शहजादे मुस्तफा तख्त पर काबिज होने के लिए आ रहे हैं। नहीं, नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। शहजादी बगावत नहीं कर सकती। गुलफाम खातून आकर पर हमला हुआ है। उनके मजरूह होने का सुनते ही इस मौके से फायदा उठाना चाहा। ये तुम क्या कह रही हो हुरम?
आका वाकई जख्मी हो गए हैं? मुस्तफा पाशा इसकी तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सही सलामत आएंगे, मुझे यकीन है इस पर। अल्लाह तो हिफाजत कर हमारे आका की और हमें माफ फरमा। मेरे पास फौरन कासिद भिजवाओ, एक अहम खबर भिजवानी है। हुरम, तुम पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूं, लेकिन इत्मीनान रखो, इस मसले को मैं बजाते खुद हल करूंगी, फिक्र ना करो। मैं बिल्कुल हायल नहीं होंगी शहजादी, इंशाल्लाह इस बगावत को आप जरूर रोकेंगी। ये मकतूब तुम आका तक एहतियात से पहुंचाओगे, और हाँ, किसी को खबर ना हो इस बात का ख्याल रखना। आप फिक्र न करें आका। ये जिम्मेदारी कामयाबी से निभाने के बाद मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह सबको परेशान करने की जरूरत नहीं है। आका और मेरी औलाद का कुछ मालूम नहीं है। शहजादे मुस्तफा सिपा के साथ हमला आवर हो रहे हैं और आप कहती हैं कि मैं परेशान कर रही हूँ सबको। हुरम, मुस्तफा के बारे में जो कह रही हो वो दुरुस्त भी हुआ तो वो तुम्हें और शहजादों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शहजादी आप कवानीन को मुझसे बेहतर जानती हैं। अगर आका को कुछ हो गया तो शहजादे मुस्तफा पहला हुक्म मेरी औलाद को और मुझे कत्ल करने का सादर करेंगे। इत्मीनान रखो और मेरी खबर का इंतजार करो। फारिहा खातून, अब हम पर नींद हराम है। अब तुम्हें शब रोज मेरे अहले खाना की हिफाजत करनी होगी। मैं और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। अब खातिर जमा रखे मलिका, मैं जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी शहजादों की। सुंबुल आगा कहाँ गया है? मकतूब भेज दिया क्या? उन्हें गए काफी देर हो चुकी है, भेज दिया होगा। तुम हुरम का ख्याल रखो और हर हाल में उसे पुरसुकून रखने की कोशिश करो। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा शहजादी, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का इत्मीनान नहीं होगा, क्योंकि आसमान से जमीन तक सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहजादी, मुस्तफा पाशा तशरीफ लाए हैं। शाहबान शहजादी मोहतरम। फौरन वजाहत दो पाशा। आका कैसे हैं? जख्मी होने वाली बात दुरुस्त है? मुझे अफसोस है शहजादी, आने वाली खबरों से यही लगता है। मैंने चंद लोग रवाना किए हैं, एक दो रोज में दुरुस्त सूरत हाल मालूम हो जाएगी। शहजादे मुस्तफा के बारे में कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। शहजादी, मैं भी इस मौजू के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करना चाहता था। सुलह जोई से उन्हें रोकने और दोबारा सरोहान वापस भेजने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। मैं क्या कर सकती हूँ? आप अपनी जानिब से एक मकतूब लिख सकती हैं। मेरा ख्याल है उन पर उसका असर होगा। बेचारगी से यूं बैठे रहना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। कौन जाने किस वक्त हमें आका की खबर मिलेगी। मेहरमा मेरी बेटी, अपने हौसले पस्त ना होने दो। हमें कुछ अरसा सब्र के साथ इंतजार करना है।
हरगिज नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मायूसी को दिल में जगह मत देना, चाहे हमारे दुश्मन मिलकर जितनी भी कोशिश कर लें। हुरम, शहजादी, क्या कोई बात मालूम हुई है आपको? नहीं, मैंने सिर्फ पाशा से गुफ्तगू की। हमें हर तरह से सोचना होगा। शहर में किसी भी वक्त बगावत फूट सकती है, या फिर जो कुछ भी हो सकता है वो तुम जानती हो। फौरन शहजादों की हिफाजत का बंदोबस्त करना होगा। आपके जहन में क्या है शहजादी? शहजादे जहांगीर और बियाजत को मेरे हवाले कर दो हुरम, उन्हें मेरे पास रहने दो। नहीं शहजादी, मैं अपनी औलाद से अलग नहीं हो सकती कभी भी। ऐसी सूरत हाल में जज्बात पर काबू रखो। मुस्तफा कुछ नहीं करेगा, लेकिन माही दौरा क्या कर जाए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। इसके अलावा खजीना का गुस्सा तुम जानती हो। आका की जानिब से कोई खबर आने तक उनकी हिफाजत मैं करूंगी हुरम। नहीं शहजादी, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही, वो मेरे खून का हिस्सा है। उनकी आकबत का फैसला मैं कर सकती हूँ, तुम नहीं। शहजादी, मुझे इसके लिए कुछ वक्त दरकार है। मैं इस बारे में सोचना चाहती हूँ। ठीक है, आज रात सोच लो। मैं कल सुबह आकर बच्चों को ले जाऊंगी। शहजादी, ये एक इम्तिहान है, हम सबकी आजमाइश है ये। कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन जाहिर हो जाएगा। मुश्किल वक्त में साथ देने वाले हमारे दोस्त हैं, खिलाफ होने वाले हमारे दुश्मन हैं। और इस बात में किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। सुल्तान सुलेमान खान वापस आएंगे और उस रोज बहुत से लोगों के सर काटे जाएंगे। मलिका, मुझे ये सुनकर बहुत रंज हुआ। अल्लाह आका को हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। आमीन निगार, आमीन। मैं दरअसल तुम्हारी ही मुंतज़िर थी, क्योंकि रुस्तम पाशा की कोई खबर नहीं आई मुझे। तुम्हें कोई मकतूब भेजा है क्या उसने? जब से गए हैं तब से मुझे एक लफ्ज भी नहीं लिखा, लिखेंगे भी नहीं। किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं मुझे। आका को अगर वाकई कुछ हुआ होता तो मुझे तो जरूर खबर भेजता वो। क्यों, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, लेकिन मलिका, सुंबुल आगा हमले के बारे में बता रहे थे। क्या पता रुस्तम आगा पर भी हमला किया गया हो, या फिर क्या? रुस्तम आगा हवा के साथ रुख बदलना अच्छी तरह जानता है। अगर आपको भी मकतूब नहीं लिखा तो जरूर कोई वजह या सबब होगा, या फिर कोई मसलियत समझी होगी। इसका क्या मतलब है निकार? क्या वो भी गद्दारी करेगा? मलिका, लगता है आप रुस्तम को अच्छी तरह नहीं जानती। वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे सबसे ज्यादा शहजादों की फिक्र है।
मेरा रब जो उनके लिए बेहतर होगा वो नसीब करेगा। मैं भी काश आपकी तरह मुतमईन हो सकती शहजादी। आका शहजादे मुस्तफा का सर काट देंगे या फिर माज़अल्लाह अगर आका को कुछ हो गया तो शहजादे खून बहा देंगे अपने बरादरान का। ये सब सोचते हुए भी खौफ आता है। एक बात का इम्कान और है, हुरम शहजादे मुस्तफा की आमद से कबल अपने बेटे को तख्त नशीन करवा सकती है, या कम से कम इसकी कोशिश करेगी। मुझे यकीन है वो ये कैसे कर सकती है? कौन किसके साथ मिला हुआ है ये मालूम नहीं, लेकिन अगर उसने जुर्रत की तो अपने मुकाबिल सबसे पहले मुझे पाएगी। इसी वजह से शहजादे अहम हैं। कल सुबह जाकर उन्हें लाना बहुत अहम है। शहजादे मेहरमा, माजरत चाहती हूँ शहजादे, आपको इस वक्त बेआराम कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कैसी बेआरामी मेरी जान? आओ आओ बैठो यहाँ, कहो क्या हुआ? मैं असमा खान को बताती हूँ, वो कब से आपका पूछ रही थी। वहां कुछ देर में जाऊंगी। शहजादी शाह सुल्तान मेरे बच्चों को ले जाना चाहती हैं। उनकी वो खुद हिफाजत करेंगी। मुझे यकीन है वो ऐसा ही करेंगी। जब शहजादे मुस्तफा तख्त नशीन हो जाएंगे फिर जो कुछ होगा उसे कोई नहीं रोक सकेगा। आप अपनी औलाद को खुद उनके हवाले करने पर मजबूर हो जाएंगी। तुम्हारा क्या मशवरा है? अपनी औलाद किसी और के हवाले करने की तकलीफ मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है मलिका। शाह सुल्तान अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूर करेंगी, लेकिन एक रास्ता और भी है। वो क्या है? शहजादे मुस्तफा तख्त पर कब्जा करने की नीयत में है, लेकिन उनकी वापसी में भी कुछ दिन बाकी हैं। उनके आने से पहले कोई भी तख्त पर बैठ सकता है, ऐसा ही है ना? जैसे कि शहजादे बियाज़त मोहतरम। मेरे बेटे को तख्त पर बिठाना चाहती हो तुम? सूरत हाल आपके सामने है मलिका। अगर शहजादे मुस्तफा तख्त नशीन हो गए तो आपकी दोनों औलादें कत्ल कर दी जाएंगी और आपको यहाँ से जलावतन कर दिया जाएगा, या फिर जैसा वो आपके लिए सोच रहे हैं वैसा ही आप कर गुजरें। मलिका, मलिका, सुबह जिस कासिद को भेजा था उसे मार दिया गया है। उसकी लाश बागीचे में झाड़ियों के दरमियान पाई गई है, अभी अभी पता चला है। सुंबुल, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे कहा भी था कि ये सब कुछ खामोशी से करना। वल्लाह मुझे नहीं मालूम कि कैसे हो गया। आपके और मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम था। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मलिका, लगता है शहजादे मुस्तफा के मुखबरों ने चारों तरफ से मुहासरा कर लिया है। उन्हें हमारे सारे इकदामात की खबर मिल रही है। हाय मेरे अल्लाह, अब क्या करें? मैं तखलिया चाहती हूँ ताकि इस मामले पे गौर कर सकूं। आपका जो हुक्म मलिका। मैंने जो कहा है इसके बारे में सोचिए मलिका, हमारे पास अब वक्त नहीं है। आपको फौरी तौर पर कोई अहम फैसला लेना होगा। निकार, मैं एक फैसला करूंगी। दुरुस्त होगा या गलत ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन अब मुझे फैसला करना होगा।
सुलेमान, तुम कहाँ चले गए? कहाँ? शहजादी, मुस्तफा भाई ये कैसे कर सकते हैं? अपने भाइयों की जान कैसे ले सकते हैं वो? तुम उसूल जानती हो मेहरमा, हम में से कोई भी नहीं जानता क्या होगा। कौन चाहेगा कि अपने भाइयों की जान ले, और वो भी मुस्तफा? आप तो भाइयों की हिफाजत कर सकती हैं ना, आप इतनी ताकत की मालिक हैं। तुम मुतमईन रहो मेहरमा, जो हो सका मैं करूंगी। शहजादे सल्तनत उस्मानिया का होने वाला मुस्तकबिल है, बिल्कुल उनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता है। दुआ मांग रही हूँ बाबा सही सलामत वापस आ जाए, और मेहमत, सलीम, वालिदा बहुत रंजीदा है, कल से एक लम्हा भी नहीं सोई, जैसे सांस अटक गई हो उनकी। बहुत परेशान है वो, उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा।